Give thanks to the Lord, who overthrew Pharaoh and his host in the Red Sea, for his steadfast love endures forever. For our meditation this morning, I have chosen from the first letter of Peter, chapter 2, verse 4. As you come to him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious. Good morning, friends. When God chooses us, there's nothing more wonderful than this situation. What are we in the sight of God? Let us meditate upon this verse. The theme for this morning's meditation is in the sight of God. Here we understand Peter writes about putting all malice and deceit away and living a life worthy to the Lord. And he goes on to talk about how the living stone, the Lord himself, was rejected by men. But in the sight of God, he was chosen and precious. People rejected the Lord Jesus, for they did not understand him. They did not listen to him. They did not see him of what he was. But then God chose him, and God considered him to be precious. Friends, we are always being looked at. People look at us and gauge us. But what are we in the sight of God? Sometimes people give us good position, or they will praise us. But then, what is more important is, what are we in the sight of God? Here, the preciousness was not understood. The living stone was rejected. The Lord was rejected. They did not understand his worth. But then, the Lord understood his Son to be chosen and precious. What are we today in the sight of people and in the sight of the Lord? In the sight of people, we may be rejected, or we may even be accepted and praised. But what is more important is, what are we in the sight of God? If God is happy about us, if God looks us as precious and chosen, there's nothing more in the world that we can achieve than this position of being accepted by the Lord. People may reject us. People may praise us. But what is more important is the Lord accepting us. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you for giving us the privilege to be your child and to be accepted as precious and chosen. Help us to be yours, O Lord. In Christ's name we pray. Amen. और फिरौन को सेना समेत लाल समुंदर में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला पत्रस अध्याय 2 और उसका 4वां वाक्य। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो इससे बहुमूल्य कोई और परिस्थिति नहीं हो सकती। हम परमेश्वर की निगाह में क्या हैं? आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की नजरों में। यह हम देखते हैं कि पत्रस लिखता है किस प्रकार से हम सारी कड़वाहट और छल को अपनी जिंदगी से दूर करें और हम ऐसी जिंदगी को व्यतीत करें जो परमेश्वर के योग्य है। और वे आगे बढ़कर बात करता है किस प्रकार से प्रभु एक जीवता पत्थर स्वयं का तिरस्कार किया गया, लेकिन परमेश्वर की निगाह में वे चुना हुआ था
और बहुमूल्य था। लोगों ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया क्योंकि वे उसे समझ नहीं सकते थे और उसे जानते नहीं थे। वे उसकी बातें सुनना नहीं चाहते थे और वे वास्तव में क्या था लोग उसे देखना नहीं चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना और परमेश्वर ने उसे बहुमूल्य ठहराया। मित्रों, लोग हमें देखते हैं, वे हमें देखते हैं और हमें तौलने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु की निगाह में हम क्या हैं? ये हो सकता है कि लोग हमें एक अच्छा स्थान देते हैं या वो हमारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की निगाह में क्या हैं। और यहाँ पर उस मूल्य को हम समझ नहीं पाए थे। जीवित पत्थर का तिरस्कार किया गया था और प्रभु का लोगों ने तिरस्कार किया था। उसके मूल्य को लोगों ने नहीं समझा, लेकिन प्रभु ने अपने पुत्र को चुना और उसे बहुमूल्य ठहराया। हम लोगों की निगाह में क्या हैं और परमेश्वर की निगाह में क्या हैं? लोगों की निगाह में हमारा तिरस्कार हो सकता है या लोग हमें स्वीकार सकते हैं और हमारी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की निगाह में क्या हैं। यदि परमेश्वर हमसे खुश है और परमेश्वर को लगता है कि हम बहुमूल्य हैं और वह हमें चुनता है, तो इस दुनिया में और कुछ हासिल करने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु ने हमें स्वीकारा है। लोग हमारा तिरस्कार कर सकते हैं, लोग हमारी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि प्रभु हमें स्वीकारे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें यह सौभाग्य देता है कि हम तेरी संतान कहलाएं और तू हमें स्वीकारे कि हम भी बहुमूल्य हैं और तूने हमें चुना है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सिर्फ तेरे कहलाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।